to prevent pilot fatigue are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. माननीय मंत्री महोदय ने अपना डिटेल स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए, उड्डयन मंत्री के बयान के बाद में सदन में भारी हंगामा देखा जा रहा है। उड्डयन मंत्री के द्वारा कहा गया कि किस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा जो कुछ भी किया गया उसके ऊपर सदन लगातार नजरें बनाया हुआ है। इस बीच 750 करोड़ रुपए का रिफंड तमाम जो यात्री थे एयर ट्रैवल्स के उनको दे दिया गया है। 24/7 जो हेल्पलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ में रीबुकिंग एडिशनल चार्जेस के बगैर कर दी गई है और आगे इन फ्यूचर ताकि आराम से कंफर्टेबली पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाए उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये बात भी कही गई कि जो ऑपरेशंस है इंडिगो एयरलाइंस के वो फिर से रीस्ट्रक्चर किए जाएंगे, यानी कि अपनी स्ट्रक्चरिंग पर इंडिगो एयरलाइंस ध्यान देगी और उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो पाएंगे। तरीका उचित नहीं है, संसदीय परंपराओं
के अनुरूप भी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा है कि आपको अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है। आप बिना नोटिस दिए ही करें। कल आपने कहा मंत्री जी ने डिटेल स्टेटमेंट दे दिया, सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आइटम नंबर 19 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8 December 2025. प्रश्न है कि ये सभा 8 दिसंबर 2025 को तो देखिए विपक्षी सांसद सदन से बॉयकॉट कर रहे हैं। भारी बवाल के बीच वो सदन से बाहर जा रहे हैं और सदन को बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी नाराजगी दिखाते हुए सदन का बॉयकॉट यहाँ पर विपक्षी सांसदों के द्वारा कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आई, इससे पहले जोरदार हंगामा देखा जा रहा था। उड्डयन मंत्री के बयान के बाद में तुरंत ही विपक्ष के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी गई। इसके बाद में फिलहाल सदन से बॉयकॉट देखा गया है। तो आपको बता दें कि इंडिगो एलायंस को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से संबोधन दिया जा रहा था। वो बता रहे थे कि किस तरीके से इंडिगो एलायंस अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से करने पर काम कर रही है और सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भारी बवाल संसद के अंदर देखने को मिला। तो देखिए लगातार इंडिगो एयरलाइंस को लेकर पूरे देश में जो अव्यवस्था हुई है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डीजीसीए ने भी इंडिगो से सवाल किए थे। तो देखिए डीजीसीए का भी बयान सामने आया है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। डीजीसीए भी अपनी तरफ से जो बयान है वो जारी कर रही है। जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस की क्राइसिस से पूरा देश परेशान है और ऐसे में बड़ा एक्शन माननीय मंत्री महोदय ने अपना डिटेल स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए उड्डयन मंत्री के बयान के बाद में सदन में भारी हंगामा देखा जा रहा है। उड्डयन मंत्री के द्वारा कहा गया कि किस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा जो कुछ भी किया गया उसके ऊपर सदन लगातार नजरें बनाया हुआ है। इस बीच 750 करोड़ रुपए का रिफंड तमाम जो यात्री थे एयर ट्रैवल्स को दे दिया गया है। 24/7 जो हेल्पलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ में रीबुकिंग एडिशनल चार्जेस के बगैर कर दी गई है और आगे इन फ्यूचर ताकि आराम से कंफर्टेबली पैसेंजर्स ट्रैवल कर पाए उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से ये बात भी कही गई कि जो ऑपरेशंस हैं इंडिगो एयरलाइंस के वो फिर से रीस्ट्रक्चर किए जाएंगे, यानी कि अपनी स्ट्रक्चरिंग पर इंडिगो एयरलाइंस ध्यान देगी और उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो पाएंगे। तरीका उचित नहीं है, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मेरी ये अपेक्षा है कि आपको अगर कोई चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए, यही संसदीय परंपरा रहती है। आप बिना नोटिस दिए ही करें। कल आपने कहा मंत्री जी ने डिटेल स्टेटमेंट दे दिया, सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। आइटम नंबर 19 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following, that this House do agree with the 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 8 December 2025. प्रश्न है कि ये सभा 8 दिसंबर 2025 को तो देखिए विपक्षी सांसद सदन से बॉयकॉट कर रहे हैं। भारी बवाल के बीच वो सदन से बाहर जा रहे हैं और सदन को बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी नाराजगी दिखाते हुए सदन का बॉयकॉट यहाँ पर विपक्षी सांसदों के द्वारा कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आई, इससे पहले जोरदार हंगामा देखा जा रहा था। उड्डयन मंत्री के बयान के बाद में तुरंत ही विपक्ष के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी गई। इसके बाद में फिलहाल सदन से बॉयकॉट देखा गया है। तो आपको बता दें कि इंडिगो एलायंस को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से संबोधन दिया जा रहा था। वो बता रहे थे कि किस तरीके से इंडिगो
एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से करने पर काम कर रही है और सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भारी बवाल संसद के अंदर देखने को मिला।